Hi everyone, welcome back to my channel, and today we are start a new chapter. I'm explaining a chapter number 17 of class 5. Chapter name is Across the Wall, means wall ke us par. In this chapter we know about some girls who start playing basketball and they face many difficulties to play the game. What difficulty they face is we know in this chapter, and who help them to achieve their goals. So let's start. A star in her eyes. It is a newspaper cutting which is published in Indian Express 2007. So just 13-year-old Afsana Mansoori has already jumped over the wall between her jhuggi and the local basketball court. The wall made by a society for a girl who washes utensils for a living, the gender wall her mother had put up for her. Today, Afsana herself has become a strong wall of NBA, the Nagpada Basketball Association of Mumbai. Today, she is the source of strength for 5 other girls who have come to the basketball court, leaving behind the problems of their everyday lives. Today, she is the star of young team. This team has managed to surprise some of Mumbai club teams. With lots of guts and courage, the team has reached the semi-final of a district level tournament. A girl, her name is Afsana Mansoori. When she was 13-year-old, she already jumped the wall, which is situated or located between her house, which is in a slum area, and the local basketball court. ये जो वॉल थी ये बनाई गई थी सोसाइटी के थ्रू, जहाँ पे लड़कियों को खेलने से मना किया जाता था। लड़कियाँ जहाँ सिर्फ अपना घर का बर्तन धोती थी। और ये वॉल जो है ये अफसाना के लिए उसकी मॉम ने ही खड़ा किया हुआ था, लेकिन आज अफसाना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल है एनबीए की। एनबीए मीन्स नागपाड़ा बास्केटबॉल सोसाइटी। एनबीए की वो बहुत स्ट्रॉन्ग अब वॉल बन गई है। वो दूसरी लड़कियों के लिए भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनी हुई है, जो कि चाहते हैं बास्केटबॉल खेलना, जो अपनी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ अपने गेम पे फोकस करना चाहते हैं। आज ये सारी लड़कियां एक टीम में हैं और उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाई है मुंबई क्लब में, एक बहुत बड़े साहस और गट्स के साथ। वो अब अपनी टीम के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल में सेमीफाइनल टूर्नामेंट्स तक पहुंच गई हैं। सो इन सबका क्रेडिट जाता है अफसाना मंसूरी को, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की ये वॉल को ब्रेक करने की, जहां ये कहा जाता है कि लड़कियां गेम्स नहीं खेल सकती। Meeting the team. We read in the newspaper about Afsana and the Nagpada basketball team. We thought of meeting these girls and introducing them to you. We took the train and got off the Mumbai Victoria Terminal station, railway station. From there, we walked towards Nagpada. It took us just 20 minutes to reach there. There we meet Afsana and the other girls of the Nagpada Basketball Association. Read the interview with the team members. यहाँ पे एक इंटरव्यू है जो कि जर्नलिस्ट ने लिया है ताकि वो हमें बता सके कि अफसाना और उनकी बास्केटबॉल टीम ने कैसे अपने गोल को अचीव किया।
उन्हें नागपाड़ा जाने के लिए मुंबई टर्मिनल से ट्रेन लिए उन्होंने, और मुंबई टर्मिनल में उतरे। वहाँ से मतलब दूसरे स्टेशन से ट्रेन लेके मुंबई विक्टोरिया टर्मिनल में वो रेलवे स्टेशन पे उतरे। वहाँ से 20 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस में उनका घर है, जहाँ पे वो अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की दूसरी लड़कियों से मिलते हैं। सो चलिए हम भी उनके इंटरव्यू को पढ़ते हैं। मीट द स्पेशल टीम, मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन। At first, the girls were quiet, but once they started, they just did not stop. So, Zareen Begum, my house is just in front of the ground. My brother used to play here. I would stand in my balcony and watch the boys play. I was in class 7th at that time. Whenever the boys play a match, many people come to watch. The winning team got a lot of praise. Everyone cheers the player. On seeing all this, I wish I could also play. Would I too get a chance to show my talent? I asked the coach, but was afraid. He is a good friend of my father. The coach said, why not? If you bring some more girls, you can make a team. Then I will teach you. So, टीम में बहुत सारी लड़कियां थी, जैसे अफसाना, जरीन, आफरीन, खुशनूर। सो इनमें से एक ने अपनी कहानी स्टोरी शेयर की इंटरव्यू जो लेने गए थे जर्नलिस्ट उनके साथ। उन्होंने कहा कि मेरा घर बिल्कुल ग्राउंड के सामने है। जब भी मेरा भाई खेलता था तो मैं उसे देखती थी, और तब मैं क्लास 7th में थी। और जब बॉयज़ गेम खेलते थे तो बहुत सारे लोग उन्हें देखने आते थे, बहुत सारे लोग उन्हें प्रेस करते थे, मतलब चीयर अप करते थे, उनको ब्लेसिंग्स देते थे। ये देखने के बाद अब जरीन का भी मन करता था कि वो भी खेले, वो भी अपने टैलेंट को एक चांस दे, और वो सोचती थी कि क्या मुझे भी वो चांस मिलेगा। तो वो उनके बास्केटबॉल के कोच से जाके मिली, बट वो थोड़ी सी डरी हुई थी क्योंकि वो उसके फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। लेकिन कोच ने कहा कि क्यों नहीं, तुम भी खेल सकती हो। अगर तुम कुछ और लड़कियां लेकर आओ और एक टीम बनाओ तो मैं तुम्हें ये गेम सिखा सकता हूँ। वी आस्क्ड व्हाट इज easy make a beginning. Khushnur said, at first my parents refused, but when I insisted, they agreed. Then Afrin said, my mother worked in the flat and sent us to school. I also help her. When I told her about my plans to play basketball, Ammi got angry. She said, girls do not play basketball. Do your work, go to school and study hard. No need to go to ground to play. But when my friends and coach sir talked to her, Ammi agreed. नाउ यहाँ पे टीम की दूसरी लड़कियाँ अपने जर्नी के बिगनिंग्स को बता रही हैं कि कैसे उनकी खेल की शुरुआत हुई। खुशनूर के पेरेंट्स ने पहले तो रिफ्यूज़ किया, बट उसके बाद जब उसने थोड़ा सा इंसिस्ट किया, ज़िद की, तो वो मान गए। अब अफसाना की जो मम्मी थी, उनकी मम्मी दूसरों के घर पर काम करती थी और उन्हें स्कूल भेजती थी, अफसाना और उसके भाई बहन को। तो और अफसाना भी वो हेल्प करती थी। सो जब उन्होंने बताया कि मैं बास्केटबॉल खेलना चाहती हूँ तो उसकी अम्मी को बहुत ज़ोर का गुस्सा आया। उसने कहा, लड़कियाँ बास्केटबॉल नहीं खेलती, अपना काम करो, स्कूल जाओ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, कोई ज़रूरत नहीं है ग्राउंड जाके खेलने की। लेकिन जब अफसाना की फ्रेंड और उनके कोच सर ने उसकी मॉम से बात की तो वो एग्री हो गई। इधर आफरीन के घर पे भी we are not allowed it because we all are girls. My grandmother gets angry with all of us, but still we three sisters come here to play. Grandmother scolds us, even scold our coach sir. She tells us you need proper equipment to play. You need to have a lot of milk for strength. Where will the money all of for all this come from? But daddy understands our feeling. He even teaches us some special moves used in the game. My daddy also used to play on this ground when he was young. He did not have proper shoes or cloth. He used to practice with a basketball.
आफरीन के घर पे भी एक अलाउड नहीं था क्योंकि वो लड़की थी और उसकी दादी माँ इस चीज़ को लेकर बहुत गुस्सा थी। इवन वो उनके कोच सर को भी डांटती थी और उसके बावजूद आफरीन और उसकी 3 सिस्टर्स भी अब भी बास्केटबॉल खेलने आती है। उसकी दादी कहती थी कि इन सब चीज़ों के लिए बहुत पैसे लगते हैं क्योंकि प्रॉपर क्लॉथ शूज़ होने चाहिए, गेम खेलने के लिए लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ होना चाहिए, सो उसके लिए बहुत सारा मिल्क चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन डैडी उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते थे। इवन उन्होंने उनको बहुत सारे स्पेशल मूव्स भी सिखाए क्योंकि जब उनकी डैडी यंग एज में थे तो वो भी बास्केटबॉल खेलते थे, लेकिन वो प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे। डैडी टेल अस दैट बच्चू खान was the coach when he used to play. He saw my daddy playing once. He realized that the boy played very well and that he should be trained properly. He gave proper shoes and clothes to my daddy. My daddy could have become a good player, very good player. But because of his responsibility at home, he left the game and took up a job. So he wants us to play and become a good players. आफरीन की डैडी भी जब खेला करते थे तो उनके कोच होते थे बच्चू खान, जो कि बहुत अच्छे थे। जब उन्होंने उनकी डैडी को गेम खेलते हुए देखा तो उन्होंने देखा कि उनके डैडी बहुत अच्छा गेम खेलते हैं। किसके? आफरीन के डैडी। सो उन्होंने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी, उनको प्रॉपर शूज़ दिए, क्लॉथ्स दिए, सब कुछ दिया जो उनकी बास्केटबॉल खेलने के लिए नीड होती है। और फिर उसके फादर एक बहुत अच्छे प्लेयर हो गए, बट घर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने की वजह से उन्हें ये गेम छोड़ना पड़ा और जॉब करनी पड़ी। इसलिए आफरीन के फादर चाहते थे कि वो एक अच्छे प्लेयर ना बन सके तो आफरीन और उनकी सिस्टर्स एक अच्छे प्लेयर्स बने। We asked, tell us about your team. Now the journalists are turns to the team member about how they could manage. So one girl said, we felt a bit strange in the beginning. We were the first girls team here. People used to come and watch us practicing. They were curious to see how girls would play basketball. Now people are no longer surprised. They have begun to accept that we girls can play well. सो एक लड़की ने बताया कि शुरू में बहुत थोड़ा सा अजीब लगता था क्योंकि वो फर्स्ट गर्ल्स टीम थी, तो लोग उनको देखने आते थे, उनके गेम को, उनकी प्रैक्टिस करने को देखते आते थे, तो वो थोड़ा सा क्यूरियस होते थे, मतलब जानने के लिए जिज्ञासु होते थे। व्हाट डिड यू मीन बाय क्यूरियस? ओके, सो यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन व्हाट द हिंदी मीनिंग ऑफ द क्यूरियस। सो वो क्यूरियस होते थे कि लड़कियां बास्केटबॉल कैसे खेलती थी, लेकिन अब उतना ज़्यादा लोगों के लिए सरप्राइज़ नहीं था। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि लड़कियां भी बास्केटबॉल खेल सकती हैं। देन अफसाना टोल्ड, आई वॉज 11 years old when we first start playing. At that time we were not allowed to go anywhere else to play a match. It has been 2 years since then. Now we go to other place also for matches. But all this could happen only because of our hard work and our sir's coaching. जब अफसाना 11 ईयर की थी तो उन्होंने पहली बार खेलना शुरू किया था। उस टाइम मैचेस जब बाहर भी होते थे तो उनको अलाउ नहीं किया जाता था बाहर जाके खेलने के लिए, बिकॉज शी वॉज सो लिटिल एंड सो नॉट सो यंग। लेकिन अब 2 साल हो चुके हैं, अब वो बाहर खेलने भी जाते हैं और ये सब हुआ है उनके हार्डवर्क और उनके सर की कोचिंग की वजह से। फिर टीम की अनदर गर्ल ने बताया दैट यस वी रियली वर्क हार्ड, सर इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्ट? इफ़ आई सेड दैट यू आर स्ट्रिक्ट और इफ़ यू सेड दैट any ma'am, your ma'am has very strict, so what did you mean by strict? So you have to give the answer in the comment section. We first jog together and then do exercise. Sir teaches how to play the game well. We practice how to keep the ball with us, to dodge the player of other team, how to throw the ball in the basket, to score a goal, to pass the ball well and run fast on court.
सो दूसरी लड़की ने बताया कि हाँ, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हमारे सर भी थोड़े से स्ट्रिक्ट है, थोड़े ज़्यादा। पहले वो सुबह उठकर जॉगिंग के लिए जाते हैं, फिर कुछ एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद उनके कोच सर उनको सिखाते हैं कि एक्चुअल में कैसे गेम खेला जाता है। और बॉल के साथ वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, कैसे दूसरे प्लेयर्स को बॉल न दिया जाए, उनको थोड़ा सा डॉच किया जाए और बास्केटबॉल में बॉल थ्रो किया जाए, कैसे स्कोर बनाया जाए, बॉल को कैसे पास किया जाए और कैसे रन किया जाए। सो ये सारी चीज़ें उनके सर उनको सिखाते हैं। आफरीन सेड, सर सेज while playing don't think you're a girl. Play like a player. Keep playing even if we get a little injured. We support each other and say, come on, get up, you will be fine. Now our game has improved a lot. Everyone says that we play as well as boys team. अफरीन ने कहा कि उनके कोच सर हमेशा ये कहते हैं कि कभी ये सोच के मत खेलो कि तुम लड़की हो, बस ये सोचो कि तुम एक प्लेयर हो। अपना प्लेयर तब भी जारी रखो जब तुमको छोटी सी चोट भी लग जाती है, और जब किसी को लग भी जाती है तो सारे टीम वाले एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं कि कम ऑन गेट अप, कुछ नहीं हुआ, यू विल बी फाइन। अब उनका गेम इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है कि वो बॉयज़ टीम से भी अच्छा खेलती है, ऐसा सब कोई कहते हैं। वी ऑल्सो प्ले विद बॉयज़ टीम, वी वॉन्ट देम टू प्ले विद अस एज इक्वल। दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स. Sometimes we get angry when the boys intimidate us, but we take it as a challenge and correct our mistakes. Sometimes we get angry when the boys imitate us, but we take it as a challenge and correct our mistake. If the boys try to cheat, we scold them. टीम की दूसरी लड़की ने बताया कि हम बॉयज़ टीम के साथ भी खेलते हैं, बिल्कुल इक्वल की तरह खेलते हैं। ऐसा नहीं कि गर्ल्स है तो उनको कोई लिबर्टी दी जाती है, बॉयज़ है तो उनके लिए ज़्यादा स्कोर्स मायने रखता है। बिल्कुल एक बराबर की तरह खेलते हैं। कई बार बॉयज़ उनको चिढ़ाते भी हैं, कई बार उनको नीचा भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम गर्ल्स हो, तुमसे तो नहीं होगा, लेकिन वो बिल्कुल अपनी गलतियां सुधारती हैं अगर उनसे कोई गलती होती है, और अगर बॉयज़ उनके साथ चीटिंग करते हैं तो वो उनके ऊपर चिल्लाती भी हैं। We said, tell us more about team. One girl said, our team is very special. Our team is united. Even if we quarrel, we quickly make up and forget about it. Here we have learned how to stay and play together. Some of the girls from our team got a chance to play as a part of Mumbai team. The match was at Sholapur. एक लड़की कहती है हमारी टीम बहुत स्पेशल है, हम एक दूसरे की हमेशा हेल्प करते हैं, हम अगर झगड़ते भी हैं तो बहुत जल्दी उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं और उस बात को भूल जाते हैं। हमने यहाँ आकर सीखा है कि कैसे एक साथ गेम खेलते और एक साथ रहते हैं। इवन उनकी टीम से बहुत सारी लड़कियों का चूज़ हुई है मुंबई टीम खेलने के लिए, जो कि शोलापुर में उनका मैच था। When we went to the Sholapur, we find that the team had girls from different part of state. They did not talk us nicely and treated us like juniors. They would not have even give a chance to play properly. We feel very bad. There was no cooperation at all that team. जब वो शोलापुर खेलने गई थी तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि दूसरे स्टेट्स की भी लड़कियाँ आई थी। उन्होंने उनसे अच्छे से बात नहीं की, उन्होंने हमेशा उनको जूनियर की तरह ट्रीट किया, गेम में भी उनको खेलने नहीं दिया और कोई कोऑपरेशन नहीं किया, जिसको लेकर उन्हें बहुत बुरा लगा। During the match, I threw the ball to one of the team members, but she could not catch it. She started scolding me, blaming me for the mistake. It all the misunderstanding. We lost the match. But this never happened in our team. If we do miss a basket because of someone's mistake, we do not get angry. We say, never mind, next time we will do better. It is more important to support each other because we are all part of a team. जब वो शोलापुर खेलने गई थी तो मैच के ड्यूरिंग में बास्केटबॉल में गोल वो नहीं कर पाई थी किसी कारण की वजह से, तो उसकी टीम वालों ने उन्हें बहुत डांटा और सारा ब्लेम उस लड़की पर डाल दिया जो कि उस मैच में खेलने गई थी।
सो उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो मैच हार गए, लेकिन आफरीन, जरीन मतलब नागपाड़ा बास्केटबॉल सोसाइटी की जो गर्ल्स हैं उनमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो एक दूसरे को अच्छे से समझती हैं, वो एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करती हैं, और लेकिन फिर भी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो ये कहती है कि कोई बात नहीं, हम अगले मैच में अच्छा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक टीम को सपोर्ट करना और उसके साथ एक साथ मिलजुल कर खेलना। After playing in Sholapur, we realized what was special about our team. We cooperate, sorry, corp, corpor, sorry, cooperation between us is our strength. We understand and support each other well. Even if every player is excellent, the team can lose a match, and if can the team can lose a match if all do not play together as a team. To play as a team, it is important to understand each other's strength and वीकनेस। शोलापुर में जब उन्होंने ये गेम खेला था तब उनको ये चीज़ें समझ में आई कि टीम के साथ रह के टीम बना के खेलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि टीम से अलग होके खेलना। टीम में स्ट्रेंथ होना, टीम में एक दूसरे को कॉपरेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यही टीम की स्ट्रेंथ होती है। और अगर हमने ये नहीं खेला तो बहुत मुश्किल हो सकती है, हम मैच को लूज़ कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और अच्छे से गेम खेलना चाहिए। किसी भी गेम को खेलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, टीम के स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस को समझना। So here student, it is the half of the part of this chapter. In my next video I will explain the rest part of this chapter, and I'll ask some of the questions during the explanation. You have to give answer in the comment section, and please like and subscribe for my channel for new videos. Thanks for watching.